Well, so today was the JMS examination, and here I have solved all the papers, and I try to give you the most authentic solution perhaps. And you can see probably this is the for the nobody, no institutes had yet given any authentic solution, and I'm providing you this video solution. I had solved all 30 questions during the course of solution. You will come to know that this is which how many questions were tough, easy, and all that also I'll tell you. So here is the solution, but before I begin I would like to say this was the JMS paper. Certainly the students, those who have got the less marks, they should not be very discouraged. They should be, if they are able to cut off the cross the cutoff, they must now prepare with full focus, full enthusiasm for the J Advance. And this paper is must for NEET. All the NEET students, they must actually solve this paper completely. Okay, and there were many few questions were there, those who were appeared last year even in JEE Mains examination. So let us now look upon the today's paper and the solution of this, and the solution is provided by me. This is me, that means Ashutosh Kumar. So now just here, I have this code C, so I'll be solving this physics paper of code C. So the very first question, that is question number 61. In code C, the physics is starting from question number 61. So the first question is, you can see the question, I have got this question, and the question is, an observer is moving with the speed of light towards, see, the observer is moving with the speed of light, okay, towards a stationary microwave source emitting waves at a frequency of 10 gigahertz. What is the frequency of the microwave measured by the observer? Means what? The observer ने कितना frequency perceive किया, ये हमको करना है. So the answer for this question is that 2, means the option number 2, that is 17.3 gigahertz. I'll tell you how to solve. So actually this is not the question of Doppler effect. Many of the people, they think that this is the question of Doppler, but this is the question of Doppler shift. So you must know this formula. You can see this f dash equal to c plus v naught upon c. V naught means what? V of observer, that is c by 2, and to like that, and to f. You just put the formula, you'll get the 17.3 gigahertz. It's just a simple calculation. Now the second question, and the second question, that is question number 62, was the following observation were taken for the surface, and this the values are given, and this you can see this tension is calculated using this R H G upon 2 into 10 to the 3 Newton per meter. So they are asking the possible error in surface tension. So how to solve such question? This is the question from error. To solve this question, first of all, you know this is the formula T R H G by 2. Even if you don't know the formula is given itself. So we need to just do that delta R upon delta R upon R, delta H by H plus delta G by G. You know this delta H G by G ka value is going to be 0. Okay, because this is not going to change, right? You understand my point? So this delta G by G is going to be 0. So now if you just put the value, this is the simple calculation. I think the one of the easiest question. Even if somebody do not know anything in surface tension, he can solve this question. Just limit little bit of understanding was required. Just you can put the value of R, because this delta D by D is equal to delta R by A, because diameter में जो change होगा यार, वही तो radius का भी ratio रहेगा ना. तो one like that you can put, and you will get the somewhere 1.489. So that's what the question number 62. Here is the question number 63. Let us read the question. He says some energy levels of a molecule are shown in the figure. Okay, you can see this figure here, this one, yeah. The ratio of the wavelengths, that is lambda 1 by lambda 2, they are asking. You can see where is this lambda 1? Lambda 1 from here to here, and lambda 2 is from here to here. Now solve this. See, yeah, this is lambda 1 and this is lambda 2. See, actually what happens, the people they do lot of calculation, and they unnecessary do this calculation, and because of that they land up with some small error and the calculation mistake. See, before solving this question, we need to know this small thing, E equal to hc by lambda r, that we know from our childhood actually. So this lambda 1 by lambda 2 equal to E2 by E1, because E is inversely proportional to lambda, right? So lambda 2 निकला कहाँ से यार lambda 2 इस वाले इससे बैंड से ये वाले बैंड में, माइनस इसे -4. डोंट बॉदर फॉर दिस माइनस साइन. इधर से E2 निकला ना, ये वाला एनर्जी लेवल, ये वाला एनर्जी, दिस डिफरेंस इज 1/3. डायरेक्टली यू कैन सी, राइट? एंड लैम्डा 1 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें डिफरेंस कितना भैया, ये E था और ये आपका 2 है, डिफरेंस कितना 1, तो 1/3/1. डायरेक्ट आंसर यू कैन पुट. सो 4/3 - 1, that is 1/3, and 2 - 1, that is 1. So 1/3 is the answer, correct? So the answer for this question is option number 3.
Now question number 64. He says a body of mass m equal to 10 minus 2 kg is moving with in medium. अब friction force इतना लग रहा है यार, F equal to minus kv square. Perhaps this is the one of the question actually every teacher takes in the class, where force जो है ना velocity का function है यार, समझ रहे हो. नीट में तो जनरली नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बट जेईई में बहुत बार आते हैं, और प्रीवियस एज एडवांस के क्वेश्चंस भी करोगे तो मिलेंगे तुम्हें. हालांकि ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट पूछा. इट्स इनिशियल स्पीड इज गिवन एंड काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है यार कि 1/8 mv0 स्क्वायर है. आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी 1/8 mv0 स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा. हमें के निकालना. के कहाँ पे आया सर? एफ में आया, वो कांस्टेंट. चलो देखते हैं कैसे करना है. अभी देखो इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें लगा बाप रे कितना बड़ा सॉल्यूशन. कुछ है ही नहीं यार, कहानी जैसा लिखना है. अगर फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो, तो मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाता है. एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया dv/dt माइनस के बाई एम वी स्क्वायर. अब मुझे क्या करना है, मैंने सोचा एक्चुअली मुझे दिया हुआ 10 सेकंड के बाद कि सर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये है इतनी हो जाती है. तो मैंने सोचा काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर्मूला मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर. तो मैं सोचता हूँ कि हाफ वी निकाल लेता हूँ 10 सेकंड के बाद, और वहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ऑब्वियस सी बात है कि वो v जो आएगा सो k के टर्म में आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन निकालूंगा और वहाँ से k निकालूंगा. वही किया मैंने, देखो जरा ध्यान से. यहाँ से फिर से dv/v किया, 1/b किया, सब कैलकुलेशन करते गए. इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच. ओके, और उस तरह से v निकाला, एंड जो v आया ना मैंने उसको एज इट इज रखा, मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया. क्यों? क्योंकि मुझे पता आगे जाके कैंसिल होने वाले हैं, ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन. अब काइनेटिक तो v निकल गया आफ्टर 10 सेकंड. ठीक है सर, देख लो आप यहाँ पे, अगर लगे तो तुम पॉज करके देखते रहना. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज गिवन 1/8 mv0 स्क्वायर आफ्टर 10 सेकंड. अब m से m कैंसिल हो गया, पहले अगर m डाल दे फालतू का कैलकुलेशन बढ़ता. इस 2 से इस 8 को कटा 4 हो गया. अब देखो मैंने लिखा यार ये v स्क्वायर जो है, सॉरी दिस v0 स्क्वायर ये वाला, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर. सो v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो 1/m इतना बड़ा सा आ गया. अब मैंने सोचा यार ये 1/4 v0 स्क्वायर ना, अब दोनों साइड रूट ले लेते हैं डायरेक्ट. अब देखो ये वैल्यू आया था, अब इसको मैंने रूट ले लिया, तो अभी क्या बचा 1/10 के बाई एम प्लस 1/10 इक्वल टू आ गया सर v0/2, क्योंकि 4 का 2 हो जाए ना रूट लेने के बाद. अब v0 की वैल्यू 10 दी आफ्टर 10 सेकंड, 1 सेकंड, तो भैया ये हो गया 5, 10/2 इक्वल टू 5. अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 50 के बाई एम, ये प्लस 5/10 इक्वल टू 1. तो ऐसा किया, और ये 50 के बाई 1/2 के इक्वल टू आ गया m अपन 2/50, m की वैल्यू 10-2, ये 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10, तो k की वैल्यू आ गया 10⁻⁻4 kg/s. मतलब क्या सर, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो अपना ये क्वेश्चन था, इसका तो आंसर क्या आ जाएगा 64 का 2 आ जाएगा. समझ में आया ना. चलो अभी आगे बढ़ते हैं 65. तो पहले हम देखते हैं 65 क्वेश्चन क्या था. तो 65 क्वेश्चन है यार, ये जो क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि Cp माइनस Cv निकालना. अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया पढ़ा होगा तो Cp माइनस Cv हाइड्रोजन के लिए उसका A बोल दिया, Cp माइनस Cv B बोल दिया फॉर नाइट्रोजन. सबको पता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार ये मेयर्स रिलेशनशिप के ऊपर है. किसके ऊपर है? मेयर्स. यहाँ पे ध्यान दो, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले रहा है यार, दिस इज नॉट हीट कैपेसिटी जस्ट. सो Cp माइनस Cv इक्वल टू R/m होगा. ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार और आया था, और ये जेईई मेंस में ही आया था. उस समय उसका नाम AIEEE हुआ करता था. AIEEE 2007 में आया था क्वेश्चन, और उस समय भी लोग गलत किए थे. बहुत सारे लोग अभी बोल रहे होंगे कुछ और की नहीं, लेकिन इसका आंसर यही होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R/2 इक्वल टू A, क्योंकि R/m लेना पड़ेगा. हाइड्रोजन के लिए मास 2 और नाइट्रोजन के लिए 28. तो अब ये A और ये B, तो A B में रिलेशन क्या 14 टाइम्स, खत्म. चलो, तो ये तो बड़ा इजी सवाल था. अगर तुमने प्रीवियस ईयर किया होता तो तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं. अगला सवाल जो है ना, ये 66 नंबर क्वेश्चन है. क्या बोला कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो यूनिफॉर्म सिलेंडर लेंथ का, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट आई दिया है, L/R का रेशियो निकालो सो दैट कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो. तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोला कि एक ये अपना सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर लिया. ठीक है सर. अब इसके बीच से ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ से बोल रहा है कि अगर घूम रहा है, ये रेडियस r है, लेंथ l है, तो L/R का रेशियो क्या होना चाहिए मिनिमम होने के लिए. तो मैं सोचूं पहले तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है. तो यार पता होना चाहिए तुम्हें कि अगर ये है ना, इसको तुम क्या करो, प्रेस कर दो. प्रेस करोगे तो ये एक रॉड बन जाएगा, रॉड के मिड पॉइंट के बाद ml²/12. अब इसको इस डायरेक्शन में प्रेस करोगे तो डिस्क बन जाएगा, और डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी. सही बात है. तो mr²/4 डायमीटर का डिस्क का होता है वैसे mr²/2, लेकिन डायमीटर के बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया mr²/4. अब तो सिंपल ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया. बोला कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार पता है, तो तुमसे पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू करना है मुझे, तो भैया L/R का रेशियो निकालो. मैंने सोचा कि चलो इसको एक फंक्शन से जस्ट y मान लिया मैथमेटिक्स का. ओके, लाइक दिस. अब मैंने बोला यार ये L है, ये R है, हमें L/R रेशियो निकालना है, मतलब L और R दोनों वेरिएबल है. तो मैंने सोचा किसी एक को तो कांस्टेंट बनाना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, ये R² सिलेंडर का अपने को वॉल्यूम पता होता है, कितना होता है वॉल्यूम, तो सर होता है πr²L. तो मैंने सोचा R² है मेरे पास यहाँ पे देखो, तो मैंने L लेना है, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, पाई से मल्टीप्लाई, हालांकि पाई से करने कोई मतलब नहीं. तो दिस बिकम्स वॉल्यूम.
ओके सर, नाउ पाई से डिवाइड कर दो, तो अब ये बचा वाई एल और ये हो गया एम एल क्यूब, क्योंकि एल से मल्टीप्लाई किया था तो 12, पाई पाई इसका भी कैंसिल, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहने दिया। अब डिफरेंशिएट किया तो सर ये वाई डी एल प्लस एल डी वाई यू इंटू वी पे, और इसका एम एल क्यूब बाई 12 तो 3 एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का। सो नाउ अब हमारे पास क्या बच गया भाई, तो डी वाई अपॉन डी एल से डिवाइड कर दो हर जगह, डी एल और इंटू एल प्लस वाई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 4। अब क्या करना है, इस वाई को इधर ले जाएंगे और एल से डिवाइड कर देंगे, तो देखो यार ऐसा हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई अपॉन एल, ये डी वाई बाई डी एल निकल गया। अब मैंने सोचा यार ये y की वैल्यू हमने इसको मानी थी, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया डी वाई बाई डी एल, और उसको जीरो से इक्वेट करें क्योंकि मिनिमाइज करना है ना। तो चलो अभी मैंने क्या किया, ये डी वाई बाई डी एल लिया और इसको देखो एल से डिवाइड किया, सब किया और इक्वेट कर दिया जीरो से डायरेक्ट, और अपने को डायरेक्ट पता चला एम एल स्क्वायर बाई 6 और एम आर स्क्वायर बाई 4, तो एल स्क्वायर बाई 6 बाई 4 सो एल स्क्वायर रूट अंडर 3/2। अच्छा सवाल था ये, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सोच नहीं पाएंगे अगर हम पहले बार मतलब करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपने पहले नहीं किया होगा इस तरह क्वेश्चन को तो जनरली स्टूडेंट्स नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह जो मैं क्लास के टाइम जैसे ही अपना एग्जाम खत्म हुआ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो उस समय तो मैं मिला तो देखा लोगों ने, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया इन्होंने क्वेश्चन को, तो उस समय मुझे समझा था कि छोटा सा मिस्टेक क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सोच नहीं पाते। ठीक है, इसका आंसर भाई देखोगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, हाफ लाइफ कैपिटल टी है और वो बी बन गया। बोल रहा है जब टाइम जीरो था, मतलब जब स्टार्ट हुआ उस समय कोई बी वी नहीं था, समझ लो सिर्फ ए था। आफ्टर सम टाइम जो ए मतलब जो तुम्हारा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी है ना विथ रिस्पेक्ट टू ए वो 0.3 है, तो पूछ रहा है कि जो स्मॉल टी है वो टाइम जो लगा जितने देर में 0.3 हो कितना होगा। तो बड़ा आसान सवाल है, केमिकल काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा ही बोल दो तुम्हारे केमिस्ट्री में, अगर तुमने वहां पे तो तुमने खूब प्रैक्टिस करी थी। रेडियो एक्टिविटी का सवाल है, देखो जरा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन को पहले लिखा ए से बी गया यार, अब ये हाफ लाइफ इतना दिया है, टाइम टी के बाद ये एन ए बाई एन बी पॉइंट ये सब दिया हुआ है। इनिशियली मुझे पता है कि कितना अमाउंट होगा उसका, पहले तो बी कुछ नहीं था तो मैं बोला एन ए प्लस एन बी होता है सर, और एन बी कितना है आफ्टर टाइम टी, बोल रहा है सर 0.3 एन ए हो गया, मतलब क्या एन ए प्लस 1.3 एन हो गया, ये दिमाग में रखना था। अब एन ए इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, अब एन एन नॉट के जब 1.3 डाला तो यहाँ से आया ई रेज़ टू माइनस 1 बाई लैम्डा, इसको इधर लेके गया तो 1 बाई 1.3। अब देखो एल एन इक्वल टू ये आ गया, अब दोनों साइड एल एन ले लिया मैंने, ये 1/3 आ गया माइनस लैम्डा टी इक्वल टू माइनस माइनस, क्योंकि 1 बाई है तो जीरो, वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस टी इक्वल टू एल एन 3 अपन वो लैम्डा, लैम्डा को लिख दिया मैंने एल एन 2 अपन हाफ लाइफ, टी चला गया ऊपर से एल एन 1.3 अपन ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 नंबर ऑप्शन जो अपना था वो इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यार देखो ये क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि इसमें गलत कौन है, तो यार अगर तुम देखोगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन को अभी मत पढ़ो, डायरेक्ट सेकंड पढ़ो। सेकंड में क्या बोल रहा है, रियो स्टेट जो पोटेंशियल डिवाइडर बन जाता है, ऑब्वियसली बनता है यार, क्यों नहीं बनेगा, रियो स्टेट तो होता ही एक बड़ा रेजिस्टेंस, बीच में जॉकी डाल दो तो पोटेंशियल तो डिवाइड होगा ही, तो ये तो सही है। किरचॉफ लॉ एनर्जी कंजर्वेटिव बेस्ड है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज द मोस्ट सेंसिटिव एंड ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे यार एक बात बताओ, सब सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो वो सेंसिटिविटी का क्या लेना देना, क्या बोल रहा है कि सेंसिटिव होते हैं, क्या बोल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज द मोस्ट सेंसिटिव ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होगा ठीक है ना जब उसके सारे सेम ऑर्डर के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे अगर सेम ऑर्डर के होंगे ना तभी जाके उस केस में क्या होगा कि वो व्हीटस्टोन उसके बीच से करंट जीरो होगा, अदरवाइज सब सेम ऑर्डर का होगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है इसका आंसर 1 होना चाहिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि बोला एक्सचेंज अगर कर दिया तो नल पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई अपने को पता है कि अपना व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो कैसा होता है, ये रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टेंस होती है, और इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, मतलब रेशियो इन दोनों का लो और इन दोनों का सेम होना, और यहाँ पे आपका सेल लगा दो बाहर में आप, तो यार ये सेल को आप एक्सचेंज कर दो, कुछ भी कर दो, मान लो यहाँ पे और यहाँ से ऐसे सेल लगा दो, ये नहीं सॉरी ये नहीं, तो इस दोनों को आप ये गैल्वेनोमीटर इसको एक्सचेंज करो, नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ना है यार, नल पॉइंट तो सर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक द 68 का आंसर होना चाहिए 1, मीन्स व्हाट, इन ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर एक्सचेंज नल पॉइंट इज अफेक्टेड। ओके सर। यार ये जो क्वेश्चन नंबर 69 है ये तो एक पजल है, क्या बोल रहा है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीन्स उसके अक्रॉस 1 kV लगाना है, हमारे पास बहुत सारे ना 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर हैं, और ये बोल रहा है कि 300 वोल्ट को एक कैपेसिटर खा सकता है, मतलब उससे ज़्यादा गया तो मतलब ये हो जाएगा, विथ स्टैंड नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा इस सवाल को सॉल्व करनी, तो एक्चुअली ये पजल है ये क्वेश्चन, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करने का। तो मैं सोचता हूँ यार कि हमारे पास कैपेसिटर है, हमें बनाना है 1 का 1 है, हमें ऐसे ऐसे कितने बनाने हैं, हमें 2 का बनाना है। अगर इसको पैरेलल में ले लिया डायरेक्ट 2 हो जाएगा, लेकिन यार पैरेलल में ले लोगे और इसको 1 kV के साथ चलेगा तो नहीं ना, अपने को तो एक तो 300 के साथ चल सकता है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, हमें 2 पे जाना है, एक को मान लिया C और मुझे जाना कहाँ पे 2C, तो मैंने क्या करता हूँ कि यार
ऐसे ऐसे ना 4 लगा लेता हूँ पहले सीरीज में। अगर इस सीरीज में लगाया तो ये कितने हो गए, एक का हो जाएगा C/4, और ऐसे ऐसे 8 पैरेलल लगा दिया। अब अपने पता है इसके अक्रॉस 250 250 250 250, क्योंकि टोटल 1000 दे रहे हो आप ना यहाँ से सेल से, तो यहाँ से तो अगर 1000 दे रहे हो आप तो 250 250 250 इसके अक्रॉस आएगा, तो ये चल जाएगा 300 तक चलेगा ना ये। तो ऐसे ऐसे कितने 4 के ऐसे ऐसे 8 लेंगे तो टोटल कैपेसिटर कितना लेंगे 32। तो यार देखो सवाल क्या बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए, लेकिन तुम ध्यान से देखो ऑप्शन का जो सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू है वो आंसर है। तो थोड़ा ऑप्शन को ढंग से ट्रिक किया, बहुत सारे लोग गड़बड़ गड़बड़ करके अगर तुक्का मारते तो क्या मारेंगे 2, अगर थोड़ा सोच लिया कि नहीं यार 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो जल जाएगा, तो भी 24/16 मार के गलत ही करेंगे। सर ये ऑप्शन बड़ा अच्छा सेट किया, इसका आंसर होगा 32 मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है इन द गिवन सर्किट लाइक दिस स्टेडी स्टेट कंडीशन में बोल रहा है क्रॉस चार्ज क्या हो जाएगा इस कैपेसिटर के। तो यार तो ये तो आसान सवाल है। आसान क्यों है, क्योंकि यार ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में ना ये कैपेसिटर का कुछ काम ही नहीं, हटाओ दोनों, उसके करंट ही नहीं फ्लो होगा, वो वाला सर्किट ब्रांच ही हटा दिया, रिडंडेंट कर दिया, ये ई हो गया, ये आर हो गया, ये R2 हो गया खाली। अब पता है करंट कितना फ्लो होगा इस लूप में, तो यार E/R+R2। तो सर पोटेंशियल, अब मैंने सोचा तो बताओ इसके अक्रॉस, क्योंकि अपने को पता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा और ये जो पोटेंशियल होगा ये वाला दोनों सेम होंगे, पैरेलल में है, सॉरी, तो पैरेलल में है, तो मुझे इसके क्रॉस निकालना होगा तो Q = CV डायरेक्ट कर लूंगा, C तो पता है V मिल जाएगा, तो मैंने V निकाला, तो V कैसे I/R2, इसके क्रॉस करंट पता है तो I/R2 E/R2/R+R2, समझ में आ रहा है ना। तो CV = क्या हो जाएगा, C से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। सो मुझे लगता है सर इसका आंसर जो है ना 70 का और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। देखो यार इस क्वेश्चन का तो कुछ पूछ रहा है कि सारे ब्रांच में बताओ कि करंट कितना फ्लो होगा। सिंपल सी बात है, अगर तुम इसके वजह से यहाँ पे देख लो, इसको इधर समझाता हूँ, ये देखो ये वाला सर्किट है, यहाँ पे इसमें पूछ रहा है सब में करंट बताओ, ये 2 है 2 है 2 है, ये 2 2 2 है, ये 1 1 1 है। देखो जरा अगर इसकी वजह से तो -2 पकड़ो, इसकी वजह से +2, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल 0 भी पकड़ा तो भी सेम ही आना है, इधर भी सेम आना है, तो अगर सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो करंट क्या क्यों फ्लो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एम्पियर। सो आंसर इज 71 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहा है, देखो जरा क्वेश्चन कि बोल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो सर पूछ रहा है इस समय से कौन सा वेव जो होगा उसमें नहीं आएगा। तो सर हमेशा याद रखो ना, जो सिग्नल होती है ना उसका होता है ω_c - ω_m से ω_c + ω_m। अब ये कैरियर और ये है अपना मॉड्यूलेटिंग, इसकी वैल्यू कैरियर की बहुत ज़्यादा होती है, पकड़ लो 5000 और इसकी पकड़ लो 100, तो ये कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा। अच्छा ω_m 100 था, इसका हो जाएगा 5100। अब तुम बताओ 5100 4900 से लेके 5100 के बीच में 100 कहीं आएगा क्या, ω_m क्यों आएगा, है ना, जो तो 4900 से लेके 51 कहीं नहीं आएगा। सो द आंसर फॉर दिस शुड बी ω_m, कि यार ये जो ω_m जो लिया ना, मतलब कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा ω_m जो है ये इसमें कंटेंट नहीं होगा। सो आंसर फॉर दिस कुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यार एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इनपुट आउटपुट में फेज डिफरेंस बताओ। इनपुट आउटपुट यार हमेशा हमारे इंजीनियरिंग में बड़ा फेमस सवाल था और पूछा था कितना क्यों होता है, तो फेज डिफरेंस हमेशा ध्यान रखो 180 होता है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्यों होता है ये सोचो, एनपीएन एम्पलीफायर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में सी मोड में 180 डिग्री फेज डिफरेंस क्यों होता है सोचना जरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है क्या बोल रहा है, कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T, इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम फिल्ड विथ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड 75, द T इज गिवन हुई। यार ये हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन का सवाल है, देखो जरा एक बार ढंग से देख लो समझ में आया। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, मान लो भाई वो जो बॉल है उसने लॉस किया तो 100 इंटू 0.1 दी हुई है उसकी, समझ में आया, तो T-75 और ms डेल्टा थीटा, और इसका भी इतना लिया, इसमें 2 है, एक आपका कंटेनर है और एक वाटर है, तो ये 75 से 30 पे गया और वो भी 75 से 30, क्योंकि दोनों के लिए ये लॉस हुआ। उसका s की वैल्यू मैंने वाटर का ले लिया 1 और इसको कैलकुलेट कर दिया तो T = 885 आ गया। लगे तो तुम पॉज करके देख लो एक बार। 75 बड़ा लेंथी सवाल है, 1 मिनट इसको पॉज करके देख लो, और पूछ क्या रहा है मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मतलब कि इसका बताओ कि सेंट्रल मैक्स 2 वेवलेंथ है अलग अलग, तो पूछ रहा है कौन से वेवलेंथ पे दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो एक बार पॉज करो, इसको पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन को, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला था कि इधर 2 अलग अलग वेवलेंथ के लिए पूछ रहा है कि सेंट्रल के बाद वो कहाँ दोनों ओवरलैप करेंगे, ब्राइट फ्रिंज का। यार ब्राइट फ्रिंज का होता है क्या, n λ/d/d, मैंने पहले का बोल दिया n1 λ/d ऐसे कर दिया, दूसरे का अब यहाँ से डायरेक्ट लिखा है, दोनों तो ओवरलैप करने, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 1, तो n1 तो x1/x2 किया, n1 λ = 1 कर लिया, n1/m2 यहाँ से λ2 4/5 आ गया उसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पुट करो ना तुम,
520/650 तो 4/5 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट का फोर्थ एंड सेकेंड का फिफ्थ ओवरलैप करेंगे। अब दोनों में से किसी एक का पोजीशन निकालो, वही हो जाएगा। या तो तुम 4 से निकालो, नहीं तो 5 से निकालो। xn1 = 4 से निकाल लिया मैं, और यहाँ पे n1 = 4 डाल दो। लैम्डा 1 की वैल्यू अपने का 650 है, कैपिटल डी जो 150 है, स्मॉल डी है, सारा वैल्यू पुट किया, फटाफट कैलकुलेशन जितना फास्ट 7.8 mm आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, फिक्स्ड डायपोल मोमेंट P है, मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 = EI कैप एंड टॉर्क टाउ की कैप है, के कैप है। E2 दिया हुआ √3 E1 I कैप, सॉरी J कैप, एंड T2 दिया -T1। तो चलो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना, लेकिन ऐसे सर। अब पहले तो मैंने कंडीशन ऐसी बना ली, टॉर्क = P क्रॉस E होता है, E1 = EI कैप, और उसका T1 ये दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है क्या √3 E1। तो मैंने वैल्यू पुट की √3 J कैप, सॉरी J कैप है, देख लेना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना, मतलब कैलकुलेशन सही किया। T2 = -T1 और माइनस टॉर्क की K कैप, और T1 = क्या यार, अब अपने को पता है P क्रॉस E, तो P क्रॉस E किया मैंने, और ये वैल्यू कितना है, टॉ के कैप = दिस मच इंटू क्रॉस आई = दिस, PY निकाल लिया, ऐसा आ गया। अब क्या भाई, PY अपने को PY आ गया, मैंने क्या किया, PY/PX निकाल लिया, T2 यहाँ से T2 निकाल लिया पूरा, और ये आ गया ऐसा। अब ये PX आ गया इतना। अब PX और P1 दोनों पता है, अब देखो क्या करता हूँ। अब PY/PX दोनों का रेशियो निकाला, तो ये आ गया √3, tan 60 डिग्री, सो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, उतना पढ़ना है तो पढ़ लो, रुक के मैं समझाता हूँ यार। बोल रहा है कि ये ऐसे दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन जब इसका क्या होगा, अल्फा निकालो। तो मैंने बोला ठीक है यार, बड़ा आसान सवाल है कि इतना तो आसान क्या है, मतलब डायरेक्ट देखो यार, ये mg इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट लिया मैंने mgl sin थीटा, बिकॉज ये थीटा तो ये 90 - थीटा, समझ में आ रहा है ना भाई, ये थीटा या 90 ऐसे तो mg sin थीटा हो गया अपना ये कंपोनेंट, सही है ना। तो अब ये mg sin थीटा कंपोनेंट हो गया, तो टॉर्क = अल्फा, और ये हो गया डिस्टेंस यहाँ से L/2, तो टॉर्क हो जाएगा mg L/2 sin थीटा = I की वैल्यू ml²/3, सही बात है। ये अपन अल्फा, और यहाँ से वैल्यू निकाल दे डायरेक्ट, भाई तो अल्फा = 3g sin θ/12, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 70 मतलब 8 पे जाते हैं, देखो 78 क्या बोल रहे हैं। तो 78 ये देखो, क्वेश्चन 78 है, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब कि एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया गया, तो बल्क मॉडुलस के दिया हुआ है, अल्फा दिया, दोनों में रेशियो बताना है, डेल्टा थीटा निकालना है अपने को मेन। तो मैंने सोचा यार दोनों को ना इक्वेट करने वाला सवाल है, डायरेक्ट करता हूँ। जैसे बल्क मॉडुलस = होता है K = -dp/, ऐसा होता है, और यह डेल्टा V/V हम वहाँ से निकालें, गैमा डेल्टा थीटा, गैमा की वैल्यू 3 अल्फा पुट की, ये वैल्यू को यहाँ डाल दिया, K = P/डेल्टा दिया P/3 अल्फा के, राइट। अरे देखो क्वेश्चन नंबर 79, ये पढ़ो जरा, क्या बोला है, एक डाइवर्जिंग लेंस है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर, बीम ऑफ पैरेलल लाइट आ रहे हैं, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। देखो इस सवाल को सॉल्व करना कैसे, अरे आसान सवाल है, कैसे बड़े बड़े सवाल हमने ऑप्टिक्स में किए थे। अभी देखो ये डाइवर्जिंग लेंस ऐसा बना मैंने, 25 सेंटीमीटर पैरेलल है, पैरेलल लाइट आ रही तो फोकस पे कट गई, तो उसका डायरेक्ट हो गया 25, बीच का डिस्टेंस 15, इसका फोकल लेंथ 20, यहाँ से मुझे अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो भैया ये 25 प्लस ये 15 40 पे होगा, और इससे इधर है तो -40, सो V = U, डायरेक्ट निकाला मैंने, वैल्यू आ गई 40। अब ये तो 40 आ गया कहाँ से, तो ये वाले कन्वर्जिंग लेंस से 40 प्लस में, तो इधर रहेगा, सही बात है। रियल या वर्चुअल, तो यार पता है ये जो आपका पहले का इमेज बनेगा वो एज ए डाइवर्जिंग यहाँ से आ रहा है, और उसको कन्वर्ज करेगा तभी तो +40 पे आएगा। इसका मतलब दिस, ये कटिंग पॉइंट ऑफ कैसा हो गया, कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज, तो कन्वर्जिंग मतलब क्या, रियल इमेज हो जाएगा डायरेक्ट, इसलिए 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर रियल इमेज, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम है, V से उसको एक्सेलरेट कर दिया गया, तो लैम्डा मीन और V बीच में हमको ग्राफ पूछ रहा है। यार ये तो डायरेक्ट लिख दूंगा, EV = hc/λ मीन, लैम्डा भी hc/EV, लॉग ले लो तो लॉग ऐसा आ जाएगा, लैम्डा log लैम्डा मीन = log hc - log EV। अब मैंने क्या किया, ये y = दिस इज c, और ये mx, राइट, और ये m की वैल्यू निगेटिव मैंने डायरेक्ट लिया, तो डायरेक्ट ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर, देखो ना ये डायरेक्ट हो जाएगा अपना आंसर, ये वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसा ग्राफ बनेगा, y = c - mx। हाँ यार ये एक बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो गलत हो सकता है। बोल रहा है कि ओपन रूम में टेम्परेचर जो है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर 17 से 27 हो गया, प्रेशर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस बताना है। देखो इसको कैसे किया, देखो सीन कुछ ऐसा है, राइट। अब मैंने सोचा कि 17 से 27 हो गया, मतलब 290 केल्विन से हो गया 300 केल्विन तक, वॉल्यूम दिया, प्रेशर दिया, मैंने n = pV/RT, ये मोल्स हैं, मुझे निकालना है मॉलिक्यूल्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो मुझे पता है, PV/R तो कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऐसे कर दिया, खाली एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना यार, यही मेन है इसमें।
नहीं तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। मेरा भी नहीं कर रहा था पहली बार में, फिर मैंने देखा यार ये मोल्स था, फिर मॉलिक्यूल पे आया तो मुझे समझ अरे अरे ये मिस्टेक हो रहा है। तो मेरा कुछ तो ऐसा जा रहा था 1/7 कुछ तो समथिंग ऐसा जा रहा था, 4 आ रहा था। फिर मैंने उसको 6 से जब मल्टीप्लाई किया 0.4 को, तो जाके 2.5 आ गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है? तो ढंग से ये गलती नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। कॉइल में जो अपना करंट का ये दिया हुआ है डायग्राम, पूछ रहा है फ्लक्स। देखो कैसे करना, करंट से डायरेक्ट फ्लक्स का कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है हमें, तो मैंने सोचा कुछ। देखो सबसे पहले जो डायग्राम दिया है ना, वहां से मैंने करंट की इक्वेशन लिख ली। यार ये 10 है वाई पे, ये है 0.5, तो यार वाई इक्वल टू, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो माइनस एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू 10 है तो माइनस, और एम का मतलब वाई बाई एक्स, तो 10 डिवाइडेड 0.5 इंटू टी प्लस 10, तो आई इक्वल टू आ गया -20 प्लस 10। पहले तो ये आई की इक्वेशन लिख लो। अब आर 100 दिया है, मुझे पता है कि फ्लक्स और ईएमएफ में रिश्ता होता है, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो मैंने सोचा पहले चलो यहाँ चलते, डी फाई इक्वल टू ई, और ई की जगह डाल दिया आई आर। सही बात है, अब आई आर डाल दिया तो आई की वैल्यू तो अपने को पता है, यहाँ से ये वैल्यू पुट करी, जीरो टाइम की वैल्यू 0 से 0.5 तक जाना है, इंटीग्रेट करते सिंपल 250 वेवर्स आ जाते हैं आंसर, तो 5 आ गया। तो इसका आंसर होगा सर 82 का 2। यार ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, हर बार आता है, लगभग हर 1-2 साल में चेंज करके आता है। बोला गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, तो बताओ कि क्या करें। यार गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर बनाना है और बोल रहा है सीरीज रेजिस्टेंस दिया, मैंने तो अगर मैंने नहीं भी पढ़ा होता ना चैप्टर तो भी करके आता है क्वेश्चन। कैसे? यार मुझे पता है गैल्वेनोमीटर है आरजी है, ठीक है 15 ओम है, मैंने सोचा इसको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना, तो इसके अक्रॉस टोटल 10 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ही बोल रहा है, पढ़ो ढंग से समझ में आएगा। तो 10 इक्वल टू, अरे आई करंट बोल रहा है तो आर जी प्लस आर एस, आई की वैल्यू 5 पॉइंट दी है, आर एस निकालना है। यार आर एस इक्वल तो इसको इधर ले जाओ और उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इधर जाने के बाद, तो आंसर है 1.98। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। फोर्स दे रहा है वेरिएबल टाइम का फंक्शन है, तो पूछ रहा है मास 1 kg है, रेस्ट से चलना शुरू किया तो 1 सेकंड के बाद बोला वर्क डन क्या होगा। तो एफ इक्वल टू 60 है, तो मुझे पता है यार फोर्स का अपने को वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो मैंने सोचा ठीक है एफ तो अपने को पता है 60, वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन डी एक्स कैसे निकाले। तो मैंने लगा फोर्स से पहले वहाँ एक्सेलेशन निकालो, एक्सेलेशन बलवा ए इक्वल टू एफ बाई एम 60, वहाँ से डी वी लिख दिया तो डी वी आ गया, वी इक्वल टू आ गया 3t² आ गया। अब उसको डी वी को डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स इक्वल टू ये आ गया अपना। अब ये वैल्यू, यही गलती नहीं करना यार डायरेक्ट, तुम अगर डायरेक्ट यहाँ पे तुम एक्सेलेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल एक्सेलेशन वेरिएबल है, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये सब नहीं यूज करना है, नहीं कर सकते, गलत होगा। ठीक है, तो अभी मैंने एफ के जब इसमें एफ की वैल्यू 60 डाल दी और डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पूरा डाल दिया, 0 से 1 से इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट करी 18/1/4, सिंपल सा 4.5 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 84 का आंसर हुआ 4। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है मैग्नेटिक नीडल है, मूवमेंट उसका दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, फील्ड दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कि टाइम 10 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा पहले टाइम पीरियड निकाल लो। तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर तुम चाहो तो याद है तो तुम्हें अच्छी बात है, तुम्हें कम टाइम लगेगा, नहीं भी याद है तो मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला सर, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा को थीटा लिख दिया, उल्टा जा रहा माइनस थीटा, तो ऐसे हम हो ही रहा है, माइनस थीटा का टेंशन नहीं, इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू टॉ बाई आई, तो एम बी बाई आई हो गया ये ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा हो गया एम बी बाई टी इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई आई बाई एम। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें कम टाइम लगेगा, नीट वाले लोगों को तो याद ही रहना चाहिए, जेई मेंस में चलेगा, जे एडवांस में तो मतलब थोड़ा सा और अच्छा सवाल है, ये तो फालतू सवाल है, वैसे डायरेक्ट फार्मूला है। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई की वैल्यू डालो, एम की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो, डायरेक्ट 0.66 आता है। अब 10 ऑसिलेशन करने तो 10 टाइम्स तो 6.6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, हाँ तो 4th नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है ये क्वेश्चन होगा जो कि सबने किया होगा, ये 86 नंबर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यार ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे बोर्ड के बुक से डायरेक्ट ले लिया है, मुझे लगता है इसे समझाने की जरूरत है, इसका आंसर हो जाएगा 3, बट फिर भी समझ लो। बोल रहा है अर्थ के सेंटर से स्टार्ट करना है, तो मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, पहले अंदर करेंगे, अंदर के बाद फिर बाहर की बात। तो पहले अंदर लिया मैंने एक्स डिस्टेंस, तो मुझे पता है यार एम, तो एम क्या हो जाएगा सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम से कर लो और उसको फिर उस एक्स के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, एम एक्स की बाई आर की, ये बहुत बार पढ़ा है हमने, अब मैं नहीं बताने चाहता, पता होगा तुम्हें। अब एक्स की वैल्यू आर से लेस लेना है, तो जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जी और एम की वैल्यू स्मॉल एम लेना पड़ेगा, तो एम एक्स क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स बच जाएगा, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। पहले जब एक्स आर से छोटा है मतलब अंदर में, बाहर में जाओगे तो जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा जाएगा तो ग्राफ हो जाएगा अपना ये तो बोर्ड के बुक से सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पर इससे क्या ऐसा सवाल जिसको सबने गलत किया होगा, इसका आंसर बाय द वे क्या होगा, बोला एक बॉल है उसको ऊपर फेंक दिया आपने, बॉल को क्या किया ऊपर फेंक दिया, तो पूछ रहा है उसका वेलोसिटी टाइम कराओ। यार देखो बॉल जब ऊपर फेंकोगे ना, नीचे से ऊपर फेंका आपने, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटते जाएगा, हाइट मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई 0। अब जब बॉल उसके बाद नीचे गिरने लगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, समझ में आया ना, वो नीचे होने लगेगा, समझ में आया? ये तो होगा नहीं क्योंकि टाइम फिर हमेशा बढ़ता जाता है, टाइम कैसे घटती है, तो कभी नहीं होगा। ये वाले में और ये वाले में क्या हो रहा है यार, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी, ये तो कभी नहीं सोचना ही नहीं है,
यार जीरो होने के बाद वेलोसिटी बढ़ता थोड़ी ऊपर से नीचे आने में, घटता है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। और इसमें बोल रहा है घटता है, घटता है लेकिन ये पॉजिटिव दिखा रहा है यार, ये निगेटिव में घटेगा, इसलिए आंसर इसका 2 हो जाएगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ो जरा। बोल रहा है पार्टिकल ए है, मास m है उसकी, और वेलोसिटी है v, m/2 मास के साथ जाके टकराया और रेस्ट में था पहले से, हेड ऑन कोलिजन हुआ इलास्टिक, तो λ1/λ2 निकालो। तो देखो इसको मैंने सॉल्व किया अपना बेसिक भाई हाथी बकरी प्रॉब्लम इंट्यूशन जो क्लास में लिया मैंने। तो v2 इक्वल टू, यार v2 जब स्टार्ट करना तो m2 से स्टार्ट करो, यहाँ u2 लो, m2, इसको तुम मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकालते हो। तो v2 ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने, क्योंकि u 0 है, u2 0 है, तो इसलिए डायरेक्ट u 0 हो जाएगा, और यहाँ से v2 इक्वल टू आएगा 4/3 भी, v1 हो गया सर यहाँ से v/3। अगर फॉर्मूला याद डायरेक्ट करो, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के सॉल्व करो। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बड़े बड़े सवाल बनते हैं जेड एडवांस के। अब मुझे पता है लैम्डा इक्वल टू h/p, p इक्वल टू mv, सो λ1/λ2 इक्वल टू m2v2 अपन m1v1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। तो अब देखो m1 m2 कितना m/2 4/3 वैल्यू डालो, 4/2 इक्वल टू 2:1। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 2 है ना, मतलब फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 89, ये सवाल क्या बोल रहा है? एसएम कर रहा है मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बताओ। अरे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी यार, तो पहले तो मैक्सिमम वाला देखो कौन सा है, तो ये है और ये है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो कभी नहीं होगा। दूसरे में बोल रहा है एक्सट्रीम पे जाने पे कितना टाइम लगता है? t/4 लगता है कि नहीं? t/2 है, ये कभी नहीं होगा। t/2 एक्सट्रीम पे गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पे, तो ये थोड़ी होगा t/2 पे, थोड़ी एक्सट्रीम पहुंचा, t/4 पहुंचे। सो आंसर फॉर दिस इज 389। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्या क्या बोला उसने कि ये मैन है वो बड़ा लंबा हो गया, पहले उसका एल था 9 टाइम्स हो गया, डेंसिटी सेम रहता है, तो बताओ कि उसका स्ट्रेस कितने से चेंज हुआ होगा उसके लेग पे। तो स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा सर, आपको पता है स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ये देखो सवाल को मैंने से बना, एक आदमी है, एल का डेंसिटी डी रहेगा, 9l हो गया, डी रहे, एस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है mg/a, राइट। तो मैंने लिखा अब m तो पता नहीं, अपना डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम इंटू डी, डेंसिटी अपॉन एरिया। अब एरिया से वॉल्यूम को कटोगे तो एल टाइम्स, तो एल डी जी हो जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट टू एल, तो S1/S2 L1/L2 S2/S1 पूछ रहा है क्वेश्चन में, S2/S1 ध्यान रखना ऑप्शन वो भी है, तो S2/S1 तो 9l/L, तो 9 हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो मुझे लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन तो मैंने देख लिया। अब मैंने जब जो गेस किया ना, तो मुझे लगा 2 ही क्वेश्चन टफ थे यार, क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 66। तो मैं देखना क्या दिखाता हूँ, देखो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 81 था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 81, ये क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोच नहीं पाते यार, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये वाला है क्वेश्चन। और एक जो क्वेश्चन जो गलतियाँ ज़्यादातर के लोग कर देते, ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपने को इसको मिनिमाइज करना है। तो मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन करने लायक। उसके बाद ईजी क्वेश्चन, ये सारे जो नंबर्स है तुम देख सकते हो, ये सारे मुझे ईजी लगे, और ये मीडियम टाइप के क्वेश्चन थे। मुझे लगा 18 मीडियम क्वेश्चन थे, 10 ईजी क्वेश्चन थे मैं, और ये 2 टफ था। 2 टफ कुछ मान लो छोड़ भी दो, एग्जाम में तुम्हारा दिमाग नहीं चला, 10 इजी में से अगर मैं पकड़ता हूँ 8 तो तुमसे होने चाहिए थे, और 18 में से अगर मैं पकड़ता हूँ 10, ठीक है, तो 18 क्वेश्चन तुम टोटल पकड़ो, 10 ये और 8 ये, तो 18 क्वेश्चन तुम फिजिक्स में, मतलब 4 से मान दो 72, तो आराम से मुझे लगता है यार 72 मार्क्स, और हालांकि इधर से बढ़ेगा भी तुम्हारा, निगेटिव भी होगा, तो मैं पकड़ता हूँ 72 मार्क्स का क्वेश्चन जो था फिजिक्स में बहुत ही ईजी था, ये आराम से किया जा सकता था। ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है कट ऑफ कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है सेम ही रहना चाहिए, बढ़ने का भी पेपर प्रिडिक्टेड है यार, हर बार वैसा ही पेपर आता है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन तो आसान रहते ही रहते हैं। तो ठीक है, सो वी स्टॉप हियर टुडे, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल वेरी मच, हैप्पी प्रिपरेशन।